Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 6th class, Assalamu alaikum. Today we are going to do exercise of unit number 6, a kind deed written by Margaret Lees. So take out your books and open page 39. First of all, we are going to do MCQs, multiple choice questions of unit 6, exercise A. Exercise A is meaning in context. Number 1, choose the best explanation for each expression. हर एक्सप्रेशन के लिए बेहतरीन जवाब का इंतखाब कीजिए, बेहतरीन वजाहत का इंतखाब कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज एन एक्सप्रेशन मीन. इसे उर्दू में हम कलाम कहते हैं, तासुर कहते हैं, इजहार कहते हैं, and you may say it a short sentence. A. A sudden commotion means अचानक अफरा तफरी हंगामे से क्या मतलब है. Remember, while doing MCQs, there is no need to search for the right answer at first. जब आप MCQs को अटैम्प्ट करने लगते हैं तो आप सबसे पहले सही आंसर का इंतखाब मत करें. The best way is you need to figure out and exclude those answers which do not relate or match your question. A sudden commotion, अचानक अफरा तफरी का क्या मतलब है. If you look at B, a serious accident, एक संगीन हादसा. अचानक अफरा तफरी कभी भी एक संगीन हादसा नहीं होती. So it cannot be your answer. If you read C, an ugly scene, एक बुरा मंजर. अचानक अफरा तफरी कभी भी एक बुरा मंजर नहीं होता. Now look at option A, an unexpected disturbance, एक गैर मुतवक्को परेशानी. Yes, it is your right answer. So you need to write A. You need to circle A option for your A choice. Turn to page 40. B. On the spot means this expression indicates a certain place. ये एक्सप्रेशन एक मकाम को, एक जगह को बताती है. If you look at option A, in trouble, परेशानी में होना एक जगह से क्या ताल्लुक है. It doesn't match your question. Around Gird, it also does not indicate a certain place. If you look at option B, here and now, if I say I am delivering a lecture here and now, it indicates a place, a spot. So it is your right answer, and circle option B. Now turn to option C. You can keep your hat. If you remember, in the paragraph or passage we studied, the grandmother praised Sarah by saying that you can keep your hat in an emergency. This particular expression indicates calmness of a person. किसी शख्स का पुरसुकून रहना, उसको ये indicate करती है. If you look at its A option, you are not nervous, तुम परेशान नहीं हो. It doesn't relate your question. Option C, you have patience, तुम में सब्र है. It also doesn't match your question. If you look at option B, you can remain calm. It indicates calmness of a person, तुम पुरसुकून रहती हो. Yes, it is your right answer. So you need to encircle B again. If you look at option D, she would treasure the words means वो इन अल्फाज को ख़जाने के तौर पे लेगी. What does it mean? If you look at option A, she would hide them away, वो इन अल्फाजों को कहीं छुपा देगी. It doesn't match your question. So you need to exclude it. Option B,
शी वुड टेक ग्रेट केयर ऑफ देम, वो उनका बहुत ख्याल रखेगी। अल्फाज का कौन ख्याल रखता है, ये कोई थिंग्स तो नहीं है, थिंग्स का टेक केयर किया जाता है, अल्फाजों का नहीं। सो इट इज़ इररेलेवेंट अगेन। नाउ लुक एट ऑप्शन सी, शी वुड वैल्यू एंड रिमेंबर देम, वो इन अल्फाज को याद रखेगी और इनकी कदर करेगी। यस, इट इज़ योर राइट आंसर। सो यू वुड एनसर्कल ऑप्शन सी। Now look at option E. A lift for low moments means. In this expression, a lift doesn't mean something to take you at the height. इसका मतलब नहीं है यहाँ लिफ्ट का कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऊपर ले जाए। The meaning of this expression is उदासी के लम्हात में उभरने का ज़रिया। If you look at its option B, something to keep her company in times of trouble, मुश्किल के हालत में उसकी सोबत में होना, किसी चीज़ का सोबत में होना, ये नहीं हो सकता। सी, समथिंग टू टेक हर अप टू अ हायर प्लेस, कोई ऐसी चीज़ जो उसे बहुत ऊंची जगह पर ले जाए। इट डजंट रिलेट योर क्वेश्चन इफ़ यू लुक एट ऑप्शन ए। समथिंग टू चेयर हर अप व्हेन शी वाज डिप्रेस्ड, कोई ऐसी चीज़ जो उसे खुश कर दे जब वो उदास हो। यस, इट इज़ योर राइट आंसर। So you need to encircle A option. Now we are going to do exercise B. Now I am going to read option first. The child was traveling with, वो बच्ची किसके साथ सफ़र कर रही थी। Again I would say there is no need to search for the right option. सही जवाब के आप पहले उसके चक्कर में ना पड़ें, उसे मत ढूंढें। यू नीड टू फिगर आउट दोज ऑप्शंस विच डू नॉट रिलेट योर क्वेश्चन एंड यू नीड टू एक्सक्लूड देम फर्स्ट। सबसे पहले उनको जो ऑप्शन नहीं हो सकते इसका जवाब, उनको निकालिए। इफ़ यू लुक एट ऑप्शन बी, हर मदर एंड ग्रैंड मदर एंड अ पोर्टर, बच्ची सफ़र कर रही थी अपनी अम्मी के साथ, दादी अम्मी के साथ और कुली के साथ। कोई भी शख्स कुली के साथ सफ़र नहीं करता, वो तो बेचारा प्लेटफॉर्म पे डेली वेजर होता है और लोगों का सामान वो प्लेटफॉर्म से ट्रेन में शिफ्ट करता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यू विल एक्सक्लूड इट। ऑप्शन सी, हर मदर एंड ग्रैंड मदर एंड सारा एंड अ पोर्टर, कि वो बच्ची अपनी अम्मी जान, दादी अम्मा, सारा और पोर्टर के साथ सफ़र कर रही थी। इट आल्सो रॉन्ग, क्योंकि सारा एक डिफरेंट पैसेंजर थी, ये दोनों, ये तीनों, अम्मी जान, वो छोटी बच्ची और दादी अम्मा डिफरेंट पैसेंजर थे। इफ़ यू लुक एट ऑप्शन ए, हर मदर एंड ग्रैंड मदर, वो बच्ची अपनी अम्मी और दादी अम्मी के साथ सफ़र कर रही थी। इट इज़ योर राइट आंसर। सो यू नीड टू सर्कल आउट ए फॉर फर्स्ट चॉइस। नंबर 2, व्हेन सारा ऑफर्ड टू हेल्प, जब सारा ने मदद की पेशकश की। द ग्रुप अराउंड द चाइल्ड क्विकली स्टूड असाइड बिकॉज, उस लड़की के गिर्द जमा वो जो लोग थे वो फ़ौरन एक तरफ हो गए क्योंकि। इफ़ यू लुक एट ऑप्शन ए, दे वर सरप्राइज्ड एट हर बोल्ड ऑफर, वो उस लड़की की बहादुराना ऑफ़र पर, मदद की पेशकश पर हैरान हो गए थे। नो। नंबर 2, दे वांटेड टू लुक एट हर प्रॉपरली, वो उसे बगौर देखना चाहते थे, बाकायदा देखना चाहते थे। इट आल्सो डजंट मैच योर क्वेश्चन। इफ़ यू लुक एट ऑप्शन सी, दे वांटेड टू गिव हर रूम टू ट्रीट द चाइल्ड। यस, वो लड़की को रास्ता देना चाहते थे ताकि वो आगे जाकर उस इंजर्ड बच्ची का इलाज करे। So you need to circle option C. Now turn to page 41. Sarah advised the child be taken to a doctor. सारा ने तजवीज़ दी थी कि बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाइएगा। I think you might know in the passage we read a particular sentence suggested by Sarah. If it hurts a lot, please take her to the doctor. ये सारा के अल्फाज थे कि अगर ज़्यादा दर्द
ये ज़ख्म ज़्यादा दर्द करे तो मेहरबानी करके इसे डॉक्टर के पास ले जाइएगा। इफ़ यू लुक एट नंबर 1 ऑप्शन, इफ़ द नेल टर्न ब्लैक, अगर अगर नाखून काला पड़ जाए तो नो, इट इज़ नॉट योर रेलेवेंट आंसर। इफ़ यू लुक एट सी, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके, इट ऑल्सो डजंट मैच योर क्वेश्चन। इफ़ यू लुक एट ऑप्शन बी, इफ़ द पेन बिकेम वर्स, अगर दर्द बढ़ जाए तो, इट इज़ योर, सो यू नीड टू सर्कल आउट ऑप्शन बी। Now turn to sentence number 4. Sarah treated the injured hand. सारा ने उस जख्मी हाथ का इलाज किया by bathing it and then covering it. If you remember, Sarah suggested that the hand should be bathed and covered. उसने तजवीज़ दी थी कि हाथ को धोया जाए और इसको ढांप दिया जाए, तो हाथ को धोया नहीं गया था, उसे कवर किया गया था। सो ए इज़ नॉट द रेलिवेंट आंसर। इफ़ यू लुक एट बी, बाय रिलीविंग द प्रेशर अंडर द नेल, नाखून के नीचे दबाव कम करके, नो, इट डजंट मैच योर क्वेश्चन। इफ़ यू लुक एट सी, बाय बैंडेजिंग इट विद द हैंडकरचीफ, रुमाल की मदद से हाथ पर पट्टी बांध कर, यस, इट इज़ योर राइट आंसर। सो यू नीड टू सर्कल आउट and circle option C. And last one, Sarah learned to treat such injuries. It's mean to whom Sarah learned to treat such injuries. सारा ने किससे इस तरह के ज़ख्मों का इलाज करना सीखा था? नंबर 1, फ्रॉम वॉचिंग एन एक्सपीरियंस्ड नर्स, एक तजर्बाकार नर्स को देखकर। वी डिडंट रीड इट इन द पैसेज, हमने ये पढ़ा ही नहीं है। If you look at option C, from listening to a professor in medicine, अद्वियात के प्रोफेसर को सुनकर। we didn't read it either in the passage, हमने इसको भी नहीं पढ़ा है, so these both are irrelevant. If you look at option B, from observing her father, अपने अब्बा जान को देखकर, yes, it is your right answer. So you need to encircle option B. It is the end of my lecture. I hope your teachers would have sent you all the relevant material regarding question answers, word synonyms and their sentences. So you need to learn them so that you may do your assessment sheets. Thank you very much.